और so it has a different taste अरे and वाह, different color. वेरी नाइस. मतलब सारा आपने इन्फ्यूज्ड वाटर रेडी रखा है. Yes. ओके, This ग्रेट, is गुड गुड. smoothie also. 2 smoothies. अच्छा, गुड, So वेरी full. नाइस. Accordingly, we are running behind you. Whatever you are telling, we are following religiously. Nice, lovely. You know, we must all clap for Sabha. So much of pains she takes and डालती है ना, इस पे बना के रखती है, फेसबुक पे भी डालती है. That's amazing. Great, great. Thank you so much, Sabha, for sharing. So let's start. So I ये have क्या made. आपने बनाया अभी? This I have made paneer. Out of this, I am Okay. going to make this mayonnaise and cheese Okay. spread because tomorrow is my session. अच्छा, okay, okay, great. Good, good. I'll also watch. Great. Chale, thank you, Sabha, for sharing. Thank you very much. Chalo, we'll start the session. Okay, and one second, I'll share the screen. And Agam, you will take care of this one. No? You'll mute everyone. Yeah. Done. Thank you for that, Sabha. Thank you so much. Very good afternoon and welcome to Get Set Up. I would like to, though you all know about this, but still, अगर किसी ने अभी तक इसको enroll नहीं किया इस course के लिए, तो definitely do this Startup Accelerator program. And if you are passionate about your vision, skills, and want to share it with others by launching your own business, we are looking for you. तो ये online program है, 12 weeks का duration है. And this program is available for free to all the Get Set Up current and future members. तो आपके पास कोई भी अगर idea है, तो आप share कीजिएगा Get Set Up पे. You will get a platform to launch your program. And today's topic is manage hypertension with 3 simple steps. And the objectives, very simple, 2 objectives: know the right diet for hypertension, understand the 3-dimensional approach to manage high BP. अच्छा, the prior check, the regular participants must be knowing this. जो नए अगर कोई join हुए या regular नहीं है, शायद उनको नहीं पता होगा about the wet pack therapy. If you know or if you do not know, please put a Y or N on the chat. If you know, आप खाली yes Y डाल दीजिए, no मतलब N डाल दीजिए. And let's understand how to manage, as well as we can also reverse high BP just by including a good alkaline diet, which Sabha has already shown at the beginning itself. इनको पता था BP है topic, तो जरा alkaline water दिखा दिया जाए. So she had shown the very right thing in the beginning. ठीक है? तो okay, let me see chat में कुछ किसी ने डाला wet pack therapy. No, anyone knows? चलो ठीक है. If you do not know, I'll share. If you have forgotten, I'll repeat it again. ठीक है? Now coming on to the hypertension, high BP बहुत common है, right? High BP एकदम what, it's like a very general term कि है तो है, ठीक है, हो जाता है high BP, कौन सी बड़ी बात है. एज हो गया, हाई बीपी हो गई, वेट बढ़ गया, हाई बीपी हो गया. बट देन हाई बीपी इज वेरी वेरी डेंजरस. लेट मी टेल यू, don't take it very lightly, because diabetes and high blood pressure, these two are the things which people take very lightly. और एक बार डायबिटीज हुआ और ध्यान आपने नहीं दिया, तो उसके पीछे 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 ये सारा हाई बीपी से लेकर के हार्ट से लेकर के सारी बीमारियां आएगी. मैं डरा नहीं रही हूँ, दिस इज द फैक्ट. सो राइट नाउ इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा भी अगर हाई है, तो नंबर 1 थिंग इज कि हमें डाइट पे बहुत कंट्रोल रखना होगा. क्योंकि बीपी है फिर भी आप डाइट पे कंट्रोल नहीं रख रहे हो, आपका वेट बढ़ा है और आपको बीपी है, आपको पता है, फिर भी आप वेट कम करने की कोशिश आप नहीं कर रहे हो. ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी डिजास्ट्रस. सो हाई बीपी का ना, इट हैज टू बी. एंड थर्ड थिंग, स्ट्रेस. डाइट, वेट, स्ट्रेस, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा डाइट लिया बिना तेल घी का, एक्सरसाइज भी किया, स्ट्रेस पे ध्यान ही नहीं दिया. नो, एवरीथिंग. ये ना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिसर्च विच वाज डन इन 1990s. मेरे ख्याल से ये लेट 90s की बात होगी, जब हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, उनके निगरानी में ये रिसर्च हुआ था इन द ग्लोबल हॉस्पिटल. ओके, हाँ, इंडिया में. बट वो टाइम पे 1990s में, नाउ वी आर हैविंग ऑल दिस ऑनलाइन थिंग, जूम प्लेटफॉर्म. उस टाइम पे आप सोचो, इतने साल पहले उन्होंने ग्लोबली
ये रिसर्च किया था हार्ट पेशेंट्स के ऊपर में. Everything you get it on YouTube. You just put 3-dimensional approach by Dr. Kalam. You will get so many videos. आप इसको नोट करके रख सकते हैं. You can get to see his speech also. So उस टाइम पे उन्होंने ये 3-dimensional approach for the heart patients he started. और तो वहां पे उस टाइम का जो मैकेनिज्म क्या था, the person who has got 9, आप ध्यान से सुनना, the person who has got 98% of heart blockage, इतना ज्यादा ब्लॉकेज एक इंसान का हुआ है, उस पर ये 3-dimensional रिसर्च, ये अप्रोच करके without undergoing surgery, absolutely the problem was reversed. ओके एंड दिस अभी उनके जाने के बाद भी ये प्रोग्राम हार्ट का वहां पे चलता है ग्लोबल हॉस्पिटल में, ये 3-dimensional अप्रोच. सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे कि हमें थोड़ा सा हमारा बीपी बढ़ा है, थोड़ा सा हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे. पहले तो मैनेज करेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. नंबर 1 is the diet, second is the exercise and wet pack therapy, and the third approach is meditation, any form of meditation. सिर्फ इन 3 चीजों से अगर इसको आपने बहुत सीरियसली और सिंसियरली किया, तो आप देखना, बहुत सिंसियरली, लेकिन you have to be very consistent in doing this. So within 1 to 1.5 months you will get to see that, notice the difference. उसके बाद में आप देखोगे बहुत चेंजेस हुए हैं. 3 months अगर आप अपने आप को दोगे ना, तो entire change you will find. Okay, so number 1, first we will finish with the diet, because people love to hear about diet. जैसे डाइट की बात आती है सबको बड़ी खुशी होती है, भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जल्दी बताओ, नोट डाउन करते करके. सो डाइट में क्या क्या चीजें पहले नहीं खानी है मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी जो पसंद वाली चीजें है ना, वो पहले ही बोल दो कि मत खाओ, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहोगे. सो नंबर 1 is अचार. Even though अचार, पिकल्स आर एक्सेलेंट. वो पिकल्स कौन सा एक्सेलेंट था, जो हमारी मम्मियां और नानियां बनाती थी घर पे बैठ के. अभी वाला पिकल इज नॉट एक्सेलेंट, और गुड की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, रादर इट इज बैड. व्हाई? बिकॉज ऑल द रिफाइंड ऑयल्स आर यूज्ड, ऑल द सॉल्ट, जो हम टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं, जिसमें हाई सोडियम रहता है, दैट सॉल्ट इज यूज्ड, and too many preservatives, and the last point is it comes in a plastic packet. या तो आप प्लास्टिक का पाउच आता है या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में मिलता है. ठीक है, अगर फिर भी कांच के डिब्बे में आपको मिला, फिर भी दैट इज समथिंग व्हिच इज हार्मफुल. सो नंबर 1 इज, इफ the achar is not homemade, if you're buying from the market, वो टेस्ट के लिए that is of no use. So we have to actually ban this achar from our kitchen and from our refrigerator. जो मार्केट वाला है, कोई आपको बना के देता है फ्रेश तो अलग बात है, ठीक है, उसमें भी ऑयल का ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्ट का ध्यान रखना पड़ेगा. सेकेंड थिंग विच वी हैव टू कंप्लीटली अवॉइड इज सॉल्ट. सॉल्ट मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, साउथ में ना there's a temple, वैदेही जी and ज्योति जी, these people might be knowing, we call it उपली अपन, as far as I remember. there ना without salt, मतलब वहां का जो प्रसाद होता है ना, वो बिना नमक का होता है. पर आप मंदिर में जब खड़े होके खाते हो ना, लेकिन आपको पता नहीं चलता उसमें नमक नहीं है करके. बट एज द मोमेंट यू कम आउट ना, यू गेट टू, पता नहीं क्या वहां का लॉजिक, आई डोंट अंडरस्टैंड, पर ये है. लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट यू ईट योर फूड विदाउट सॉल्ट. सॉल्ट लेना है, बट नॉट द टेबल सॉल्ट. राइट नाउ अभी भी जो हुआ ना, मुझे अभी याद है, व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, तो एक कौन सा ब्रांड था याद नहीं है, सॉल्ट का एक ब्रांड था, तो उसमें दैट मॉडल शी यूज्ड टू शो ऐसे फ्री फ्लोइंग, वो हाथ से ऐसे फ्री फ्लो हो रहा, दूसरा एकदम चिपक चिपक के गिर रहा है. आप लोगों को भी याद होगा, बहुत बहुत पुराना एड था ये. सो वो एड हम लोग देख के बड़े खुश होते, फ्री फ्लोइंग सॉल्ट. तो जितना फ्री फ्लोइंग सॉल्ट है ना, उतना उसमें सोडियम ज्यादा है, वो उतना प्रोसेस्ड है. एनीथिंग जैसे ना, मुझे अभी याद आ रहा है, बाबा रामदेव कहते हैं हमेशा अपने इसमें शिविर में कहते थे, मैं पहले बहुत अटेंड करती थी जब कैलकाटा में थी, तो हमेशा कहते थे, अति, कोई भी चीज अति होना वो गड़बड़ होता है. अति मतलब अति सुंदर, अति टेस्टी, अति जो भी जो बहुत एक्स्ट्रा देता है वो अति, वो ठीक है. अति ओवरफ्लोइंग हो रहा है ना, सॉल्ट फ्री फ्लोइंग, which means that is not good. So we have to, mainly we have to remove, number 1 is the achar,
पैकेटेड वाला अचार, सेकेंड जो हम सॉल्ट जो खाना में डाल के खाते हैं, सो उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है, सेंधा नमक, गो फॉर जस्ट सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, आप उसको जो भी नाम देते हो ना वो सॉल्ट में जाना, सी सॉल्ट भी होता है, फिर मोटे मोटे सॉल्ट होते हैं, यू नो, वो उसी को सी सॉल्ट कहते हैं, फिर उसको तोड़ के पाउडर भी कर सकते हैं, गो फॉर ऑल दीज नेचुरल फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। द थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी अभी पिछले हफ्ते इसका क्लास भी हुआ, ऑयल। ऑयल जब आप लोगे ना, इंश्योर दैट यू डोंट बाय द रिफाइंड ऑयल, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देना तबीयत के लिए, बट गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वुड प्रेस्ड ऑयल। हमेशा ऑयल है ना, हार्ट पेशेंट्स को या फिर हाइपरटेंशन वालों को ना, ऑयल से समझौता मत करना, सॉल्ट से समझौता मत करना, गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वो उसमें से आप कुकिंग करना, घी यू कैन यूज। नाउ कमिंग, दीज आर द सम डूज एंड डोंट्स, कमिंग टू द डाइट, what diet we are going to have. Just one point ना, you please remember कि जितना हो सकता है हम अपने अंदर का जो कचरा है ना उसको साफ करना जब शुरू करेंगे ना, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, सिंपल इन आयुर्वेदिक टर्म्स, we are not going into very deep scientific terms, what Ayurveda says 5000 years ago, that if your stomach is not clear, if your stomach is not getting cleared, so the toxins are remaining in your body, those toxins are going to create health problems for you. So मेरे लिए अभी मेरे हार्ट के ऊपर में मेरा जो ब्लड है वो प्योर नहीं है क्योंकि कचरा भरा हुआ है, उसके लिए मुझे बीपी हाई हुआ है मेरा. So what do I do now? I need to change my diet. Though many of you are doing the change in diet, लेकिन क्या हो जाता है गड़बड़, डाइट हम थोड़े दिन के लिए करते हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ, फिर है ना एक फेस्टिवल आया या एक पार्टी आई तो गड़बड़ हो जाता है, वी जस्ट मूव अवे फ्रॉम आवर डाइट, राइट. एक थम्स अप देना होता है, वेरी कॉमन, राइट. ओके, तो अभी यू कैन नोट डाउन व्हाट शुड बी आवर डाइट फॉर द हाइपरटेंसिव पीपल, जिनको जब मैं रोज रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते ये पियो वो खाओ करके, बट डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन यू चूज व्हाट यू वांट टू हैव, राइट. परसों 2 दिन पहले मैंने बोला था कि ग्रीन जूस पियो, then you will think that yesterday she told green juice, now today she is saying ashgord juice, कितना confusion है करके. Now this confusion we have to sort it out कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है उसके accordingly. So today we are talking about hypertension. So for hypertension the best juice is ashgord juice. Why? The reason is all the kachras, the toxins which are there inside our body, inside our stomach, that is going to ashgord works like a magnet. तो वो सारा चिपकेगा, all the toxins, and then it will be flushed out of the body. So a very, अच्छा इसमें है ना, you will not add anything. Morning when you get up in the morning, drinking water, post water 20 minutes, only ashgord juice. ओनली मतलब ओनली ashgord juice, पतला सा टेस्टलेस सा सफेद रंग का आपको एक पानी दिखेगा. सुबह सुबह वो पानी को देखते ही ना, जैसे चंद्रकांत जी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे सुरेखा जी लाके देंगी ना वो पानी, बोलेगी भवानी को काम नहीं है, बैठी रहती गेट सेटअप पे कुछ भी बकवास करते हुए, सुबह सुबह देखो सुरेखा मेरे को ये लाके पिला रही, क्या चाय पीता था मैं, ऑफिस भी नहीं जा पाता हूँ, नहीं तो वहां जाके तो भी चाय पिया रहता करके. बट दैट इज एन अमृत फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना. तो अगर हाई बीपी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो the first juice has to be ashgord juice. So number 1 we had water, post 20 minutes 1 glass of ashgord juice, 1 अच्छा water वाला glass full, no salt, no pepper, nothing, no flavoring, ऐसे के ऐसा tasteless. दवाई कौन सी टेस्टी होती है, वो टेस्टलेस होता है ना, पानी के साथ मुंह में डाल लेते हैं. उसके बाद 1 hour gap you have to give. उस 1 hour के बाद में, this is the entire general डाइट आई एम शेयरिंग फॉर द हाइपरटेंशन, ठीक है. 1 घंटे के बाद में कंपल्सरीली पोस्ट 1 hour वी हैव टू हैव 1 फ्रूट. सारे हाई बीपी वाले सुन लो, पहले हमने यहाँ पे चाय वाय बिस्किट विस्किट कुछ नहीं चलेगा, फिर आप बीपी की दवाई भी लोगे, फिर चाय भी पियोगे, फिर जूस भी पियोगे, फिर फायदा नहीं है. स्टिक टू 1 थिंग, ओके. सो वी हैड जूस, जूस के 1 hour के बाद में वी विल हैव फ्रूट. दैट कैन बी एनी सीजनल फ्रूट. सो मंडे यू, आप खुद का अपना प्लान करके रखो शेड्यूल, अब टाइम मिल रहा है ना इतना हेल्थ का ध्यान रखने का, तो जरूर हेल्थ का ध्यान रखना. सो मंडे कैन बी
a medium bowl of papaya. Tuesday 2 apples. Wednesday 2 bananas. कुछ नहीं होगा बनाना खाने से, डरने की जरूरत नहीं है. 2 bananas. Then Thursday को 2 pear. फिर फ्राइडे को स्मॉल बोल ऑफ ग्रेप्स. तो इस तरह से ना हर दिन एक एक फ्रूट, पोस्ट वो जो जूस होने के 1 घंटे के बाद में अच्छा खासा एक बोल आप ये फ्रूट्स लेना. ठीक है. फ्रूट लेने के बाद में अगेन आफ्टर 1 hour देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट. अब जिनकी ब्रेकफास्ट की आदत छूट गई है, अभी जैसे शायद वीना जी है, वैदेही जी है, लीना जी है, बहुत सारे लोगों की ब्रेकफास्ट की हैबिट छूट गई, अब स्मूदीज लेना शुरू किए. सो इफ यू आर टेकिंग स्मूदी, गुड, यू कंटिन्यू विथ योर स्मूदी. अगर इफ यू डू नॉट वांट टू टेक स्मूदी, आपको लगता है बहुत भूख लग जाएगी, डर लगता है, फाइन, यू गो फॉर ब्रेकफास्ट. लेकिन ब्रेकफास्ट हम कौन सा करेंगे? हाई बीपी वाले कोई ऑप्शन नहीं है. अपने को जितना कम होगा ना तेल घी, वो कम करना ही पड़ेगा. जैसे ही मैं अपना डाइट प्लान खत्म करूंगी ना, आई नो देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑन द चैट दैट यू हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट नॉन वेज करके. नॉन वेज खाना नहीं है ऐसा करके नहीं, बिकॉज द मोर यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, फैट उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है. और हमारी इंडियन जो कुकिंग होती है नॉनवेज की, उसमें फिर हम और तेल मसाले डाल के बनाते हैं. सो इफ यू आर अ रियल नॉन वेजिटेरियन ईटर, मे बी once or twice in a week you go for non-veg food, but rest of the days make sure that you are going for vegetarian diet. Reason, क्योंकि हम जब तक है ना, अपना बीपी बहुत डेंजरस है. मजाक मजाक सबको लगता है अभी इतना mg खाया, बढ़ रहा है, कम नहीं होता, और उस पे mg. और सी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको बोलेगा आप बढ़ा दो उसका, वो जितना mg अभी 2.5 ले रहे हो तो 5 कर दो. लेकिन वी हैव टू थिंक कितना हम मेडिसिन लेंगे, राइट? सो थोड़ा वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. सो दैट्स द रीजन हम या तो स्मूदी लेंगे ब्रेकफास्ट में. स्मूदी अगर आपको नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, you can go for low fat breakfast. Low fat breakfast मतलब idlis are one of the good options. and उसमें अगर आप ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी ये सब लेते हैं ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट मोलगा पुड़ी विच वी कॉल गन पाउडर जिसको कहते हैं, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा डालना पड़ता है. सो उसके जगह पे आप पीनट चटनी, लाइक दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस, ये चटनियां आप ले सकते हो. ठीक है. वन मोर थिंग, पीपल हु डू नॉट लाइक स्वीट्स ना, जैसे फ्रूट स्वीट होता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता कि बहुत मीठा मीठा अजीब सा लगता है. जैसे मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जिसको स्वीट पसंद है. अब आपको अगर फ्रूट खाने से वो स्वीटनेस अगर नहीं पसंद है ना, सो यू कैन ऐड, जब आप एप्पल खा रहे हो ना, एप्पल के साथ में चटनी डाल के खाओ. दिस इज वेरी टेस्टी. मैंने देखा है जिनको स्वीट नहीं पसंद है ना, वो ऐसे ग्रीन चटनी मिला के खाया, उसमें पीनट का चटनी मिला के खाया, ऐसे कोई भी टोमेटो की चटनी. तो ये सारे चटनीज के साथ आप फ्रूट्स लो. सो क्या होगा ना, वो टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टेड आएगा तो अच्छा भी लगेगा खाने के लिए, राइट? सो ब्रेकफास्ट में द बेस्ट ऑप्शन नंबर 1 इज इडली. द सेकेंड गुड ऑप्शन इज गोइंग फॉर अ दलिया. दलिया में ना बहुत सारे वेजिटेबल्स आप डालना, एकदम फैट फ्री दलिया बनता है. इट्स वंडरफुल बिकॉज आई मेक, सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग अच्छा बनता है. ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा. तो वो दलिया एक ऑप्शन हो सकता है. थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि रागी जो होता है ना, रागी का पॉरेज, मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन साउथ इंडियन स्टफ, साउथ इंडियंस बहुत लेते हैं. सो रागी जो होता है ना, रागी को जैसे पिछले थोड़े टाइम पहले वैद्य जी ने भी शेयर किया था रेसिपी, मैंने भी बोला था. रागी को, जो रागी का फ्लावर जो होता है ना, उसको जस्ट हल्का सा रोस्ट किया, रोस्ट करके उसको नॉर्मल वाटर में अच्छे से उसको मिक्स कर लिया विदाउट हैविंग लम्प्स. हाँ, ज्योति जी इज आल्सो देयर. सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के चला के, देन you add, I mean general ठंडा हो जाएगा तो you can add buttermilk, because since I don't prefer buttermilk, so I add milk भी I don't take. So what I do, I add coconut milk. coconut milk एक दिन, फिर एक दिन उसमें ना आमंड को अच्छे से पेस्ट बना के उसमें डाला. So these things you can go for. One more option is कि बहुत कम तेल में चीला बनाना. So इस तरह से, या फिर आप कोई और मिलेट लेकर के, जैसे बाजरा है तो बाजरे की आप है ना उपमा टाइप कुछ बना देना. फिर सूजी का जब आप उपमा बनाते हो तो वो भी है ना थोड़ा कम ऑयल में यूज करना. सो दीज थिंग्स यू कैन गो फॉर योर ब्रेकफास्ट, यू कैन हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट. ठीक है. अब ब्रेकफास्ट होने के बाद में, सिंस जो मॉर्निंग, क्योंकि वी हैड ऑलरेडी टेकन फ्रूट, सो मिड मॉर्निंग में यू विल नॉट हैव एनीथिंग, डायरेक्टली वी विल गो फॉर द लंच.
ठीक है, लंच का टाइमिंग्स भी पता है, आफ्टरनून 3 o'clock का सेशन ही है, बायो रिदम, वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट द क्लॉक, क्यों इस टाइम पे हमें ये सारी चीजें खानी है। तो 1 बजे आप अगर फिनिश कर दोगे अपना लंच, तो सपोज आपको बीच में कुछ खाने का मन करता है, ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में, बेस्ट इज यू गो फॉर हर्बल टी। जितने घर में आपको किचन में स्पाइसेस दिखते हैं ना, नो प्रॉब्लम, ऐड ऑल द स्पाइसेस, ऑल द हर्ब्स, सबको डाल के बॉईल करना, उसको स्ट्रेन करके पी जाना। ये नहीं करना है, सो मेनी इन्फ्यूज्ड वाटर रेसिपीज आई गिव 3-4 days बैक। कुछ भी आप रेडी रखना, लाइक सीजनल है, अभी गाजर भी मिल रहा है, एप्पल भी मिल रहा है, आधा गाजर आधा एप्पल कट किया, अच्छे से धो के एक बड़े ग्लास पानी में आपने डाला, उसको डाल के रख दिया, आफ्टर योर 1-1.5-2 घंटे के बाद में उसको स्ट्रेन करके पी जाना। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, ये जो वाटर्स होते हैं ना, इन्फ्यूज्ड वाटर, जैसे अभी सबा ने दिखाया, तो दीज इन्फ्यूज्ड वाटर्स आर लिटिल टेस्टियर देन द नॉर्मल वाटर। तो वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है कि मैंने कुछ लिया, कुछ अलग सा लिया, तो भूख आपको नहीं लगती है, नहीं तो झूठ मूठ का भूख बहुत लगता है ना। तो फिर लंच के बाद में, देन पोस्ट लंच 3 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद में, जब दोपहर का गेट सेटअप चलता है 3 बजे 4 बजे, व्हेन यू वॉच माइन और दिव्यास को किसका आप देखते हो ना, उस टाइम पे आप बैठ करके थोड़ा सा शांति से चाय या कॉफी पीना, ठीक है। और अगर आपको मॉर्निंग पीने की बहुत आदत है, आई ऑलवेज सजेस्ट कि मॉर्निंग मॉर्निंग उठ के ना डोंट ड्रिंक टी, और थोड़े दिन आपको तकलीफ होगी। सी एनी डाइट, आई टेल यू, अभी मैंने एक नया डाइट, बिकॉज आई कीप ऑन ट्राइंग ना, सो मैंने 2 वीक्स के लिए मैंने खुद को चैलेंज दिया, ये दिस चैलेंज विल गेट ओवर ऑन 14th। तो कैसा होता है मेरे से, एक नया मैंने चैलेंज किया अपने आप को। फर्स्ट 3 days वाज हॉरिबल, मतलब मैं कैसे काम कर रही थी मुझे को पता है, लेकिन अगर मैं मुंह खोल के किसी को बोलूंगी तो सब चिल्लाने लगते हैं घर पे, ज्यादा ही बहुत ज्यादा नाटक करती है, ये करती है वो करती है, क्या जरूरत है, सब कुछ तो ठीक है, फिर एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट माई सेल्फ, दैट अब नाउ अभी हो गया ऑलमोस्ट 10 days, perfectly all right, कुछ नहीं। So any diet for any person, something new, when we exercise भी देखो, आप 2 सूर्य नमस्कार करते होंगे, किसी ने आपको बोला बीच में, अभी 4 दिन पहले हुआ था ना 108 सूर्य नमस्कार चैलेंज, पता नहीं किसको, इंडिया हैड कंडक्टेड दिस इवेंट। तो माय फ्रेंड ना, माय फ्रेंड इन द सेंस माय हस्बैंड कलीग जो रिटायर हो गए, उनकी वाइफ, शी 65 years old, बहुत आते हैं वो भी गेट सेटअप पे, अभी आज है क्या पता नहीं, she completed 108 सूर्य नमस्कार। तो आई कॉल्ड हर अप एंड आई आस्क्ड कैसे आपने किया, क्योंकि मेरा तो बहुत प्रैक्टिस ही छूट गया है, मैं 11 भी कर लूं अभी बहुत बड़ी बात हो गई, इतना हेक्टिक शेड्यूल में हो नहीं रहा सूर्य नमस्कार। तो शी सेड एवरी डे शी वाज प्रैक्टिसिंग 40 हर दिन करती थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई भी नई चीज करते ना, ये डाइट भी आपको 2-4 दिन के लिए तकलीफ होगा, बट बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। चाय ऑल्सो व्हेन यू लीव, 2-4 दिन के लिए तकलीफ होगी, फिर आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम शाम को दोपहर को हम चाय लेंगे, चाय या कॉफी आपको जो भी पीना है, कंडीशन इज डैश डैश, यू विल नॉट टेक what बिस्किट्स एंड एनी काइंड ऑफ नमकीन, चाय के साथ हमें नहीं लेना है, ठीक है। यू कैन टेक जस्ट चाय, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन चाय के बाद जब शाम को भूख लगेगी, दैट टाइम यू कैन अगेन द सेम थिंग, जो मैं बोलती हूँ ना, कम तेल वाला कुरमुरा, मखाना, पीनट्स, थोड़ा सा आपने कुछ भी, मतलब सम सॉल्टेड थिंग विच डज नॉट हैव, विच इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द पैकेट। चिप्स खोल लिया, खा लिया, वेफर खा लिया, भूख लग रही है, नहीं ऐसे नहीं। फिर मन किया तो ऑर्डर किया वड़ा पाव, जोमेटो गिमेटो सब तो ऐप आ जाता है घर पे, नहीं, नॉट लाइक दैट। यू बी वेरी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ। अपना इसको टंग, वो इतना सा है, वो टंग छोटा सा 2.5 इंच का टंग, पूरा हमारा इतना लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको इतनी तकलीफ देता है। सो रिमेम्बर, बेचारे वो इतने ना, उसके बाद हार्ट पे प्रेशर आएगा। सी देयर वाज अ क्वेश्चन, एक बार ऐसे जब चल रहा था ना क्लास, अभी क्या है ना, द यंगस्टर्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, सो दे आर एकदम, दे पहले हम लोगों की तरह ऐसे नहीं है, टीचर को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी ऐसे वैसे, nowadays these people are not like this. So what they do, they already set a question in their mind and then they check on the Google whether there is any answer for this question, and then they take test of the teachers. तो जब बात ऐसे चल रही थी, सम ऑयल का जो टॉपिक चल रहा था,
तो one of the students asked कि ma'am you are talking so much about this कि ये नहीं वो नहीं, but I still remember when I used to go to my दादी's place in the village, तो दादी तो कितना सारा फ्राई करके या घर में वो पापड़ बना के वही चीजें फ्राई करके कितना कुछ खाती, अचार की तो भरनी पूरी भर के रखी है. Now you are saying don't eat this, don't eat that, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा करके. So luckily I had the answer to this question. आप देखो पुराने जमाने के जो लोग थे, आप अपना खुद का भी आप अपने बारे में भी सोचो. 20 years back आप अपने पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स का सोचो, वो कितना काम करते थे. आप अगर देखा होगा ना अभी चंद्रकांत जी, अगर आप अपने विलेज जाओ गए होंगे ना बचपन में, तो आपने देखा होगा विलेज में खेती बाड़ी लोग करते थे, है ना. आदमी जाकर के खेती बाड़ी करके आता था. घर में जो औरतें हैं वो पूरा उसमें पीस करके, मेरी नानी है ना डोसे का बैटर वो पत्थर में, व्हाट इज दैट कॉल्ड वैदे जी, वो होता है ना गोल गोल वाला, उसमें पूरा करती थी. तो जो भी वो लोग तल के खाते थे ना, ऑल दीज थिंग्स यूज, वो कैलोरीज पूरी बर्न होती थी. और वो सॉल्ट उस टाइम का ये वाला सॉल्ट नहीं था जो अभी हम लोग खाते हैं, हाँ, वो वैसा वाला सॉल्ट था, वो रॉ एकदम जो रॉ सॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, वैसा प्रोसेस नहीं था. सो दे वर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, सारा बर्न हो जाता था. अब क्या हो रहा है, हम एक ही जगह पे बैठे हैं, यस हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं हम, तो हमारा वो सारा जो है ना, हमारी ब्लड थिक होने लगती है क्योंकि हमारी उतनी एक्सरसाइज नहीं होती. खाना बहुत है, खाने को इतने वैरायटीज मिल गए, ग्लोबलाइजेशन वो कम नहीं हो रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर फूड. सो इवनिंग में हमने ये लिया. रात को आप अगेन आई वुड सजेस्ट गो फॉर श्रीधान्य. श्रीधान्य अगर आपको मुश्किल लगता है तो ठीक है, कोई भी आप मिलेट लो, चपाती लो. बेस्ट इज वेज चपाती, बेस्ट इज वेजिटेबल चपाती. ओके, नाउ वेजिटेबल चपाती मतलब क्या कि हमने कोई भी एक तरह का कोई एक वेजिटेबल लिया. I think I've shared the recipe of vegetable chapati, right? कि suppose for example you are taking carrot, okay? So carrot को हमने क्या किया, carrot को कट किया छोटे छोटे पीसेस में, and then उसको हमने मिक्सर में डाला उसको, and उसको पीस करके you make a paste out of it. ठीक है, वो पेस्ट को आपने आटे में मिलाना, and then you can add जीरा, then अजवाइन, लिट सॉल्ट की जरूरत नहीं है because we'll have दाल and all. Okay, sorry. So तो वो आप सब मिक्स करके ना you make a dough. ठीक है, और उस डो से फिर आप उसको बेलो. और दिस वन, गाजर की चपाती वी कैन मेक, बीटरूट की चपाती वी कैन मेक, जो स्पिनच होता है उसका, धनिया. लेकिन एक एक वन थिंग यू टेक, नॉट कंबाइनिंग टुगेदर. ना इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. सपोज आपको मिलेट्स खाने का मन नहीं करता, अभी कौन वो बार्ली बनाएगा, कौन ये बाजरा बनाएगा, इट्स बोरिंग, नहीं ठीक है, आपको रोटी खाने की आदत है, नॉट अ प्रॉब्लम. व्हेन वी मेक दिस काइंड ऑफ चपाती, आप इसको समझना लॉजिक क्या है कि मैंने अगर एक कटोरी गाजर का पेस्ट डाला तो एक कटोरी आटा डाला. सो व्हेन आई एम, पानी नहीं डालना इसमें, ओनली विद दैट पेस्ट वी हैव टू मेक द डो. जब इस वाले जो डो की जब रोटी बनती है, सो व्हाट हैपेंस इज कि सपोज आई टेक 2 चपातीज, समझ रहे हो ना, तो मतलब है कि मैंने एक ही खाया. कैसे एक ही खाया, क्योंकि आधा तो उसमें वेजिटेबल था. सो दैट वे है ना, हमारी कैलोरीज जो है बढ़ नहीं रही है. So, इसमें हल्का सा घी लगा के यू कैन हैव दिस, राइट. नाउ जिनको रोटी बनाने में, साउथ पीपल जो है ना ज्यादा रोटी प्रेफर नहीं कर सकते, सो गो फॉर मिलेट्स. सो नाइट में यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ स्टफ. वेज चपाती हर दिन, एक एक कलर की चपाती, इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना. आपके घर में बच्चे आएंगे ना छोटे, उनको भी देना, दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. वो कलर चपाती जो रहेगी ना, रेड ग्रीन, जो हमारा येलो, फिर वो जो सारा होता है ना, उसको आप है ना रोल करके यू पुट, आप उसके अंदर है ना चटनी अच्छे से लगाना, कोई भी चटनी, और उसको ऐसे रोल कर देना. गिव इट टू द किड्स. छोटे छोटे बच्चे रहेंगे ना, क्या पिज्जा बर्गर करके खाते, इतना मजा आएगा उसको खाने में, you'll enjoy that. So this is going to be the entire day's menu plan for a person who is hypertensive. Doable, मुश्किल तो नहीं है. वैसे मेरे प्लान सारे इजी होते हैं, पर आप लोग कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे पता नहीं है क्यों. ठीक है, गुड. सो दिस इज गुरविंदर जी, वैदे जी, ये तो है, लीना जी, लोग तो बिल्कुल रेडी रहते हैं. यस,
ग्रेट, ठीक है, वीना जी भी है, ओके. सो दिस इज द प्लान, डाइट प्लान. कमिंग टू द सेकेंड वन, एक्सरसाइज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच, क्योंकि आप लोग बहुत करते हो एक्सरसाइज, नो प्रॉब्लम, अब सब लोग करते हो. वैदेही जी तो 3 क्लासेस एक्सरसाइज की एक साथ कर डालते, बिल्कुल हाईली शी इज एनर्जेटिक, गुड, टच वुड. उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में एक्सरसाइज के अलावा वन मोर इज वेट पैक थेरेपी. नाउ दिस इज वेरी सिंपल, आप लोग सब करो, किसी को, आपके घर में जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, सबको करो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है. बट अगर किसी को बीमारी आने वाली होगी ना, वो भी ठीक हो जाएगा. हाइपरटेंशन आ गया है तो ये 3 महीने में ठीक हो जाएगा. कैसे? फॉर द वेट, I have one dupatta I'll show you. Wet pack therapy में what we have to do is we have to take 3 white color का, white नहीं, या कोई भी आप कॉटन, एकदम प्योर कॉटन क्लॉथ आप लेना. So one will be, I'll show you, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ बैकग्राउंड हटा के. See, one will be like this, इतना चौड़ा. I hope you can see, right? So some 9 inches आप समझ लो, इतना चौड़ा रहेगा एक पट्टी कॉटन का. फिर दूसरा पट्टी थोड़ा पतला जो गले में लगेगा, तीसरा यहाँ फोरहेड में. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक 3 ऐसा कॉटन का बड़ा लेना लेंथ में थोड़ा, क्योंकि वेस्ट एरिया हमारा बड़ा होता है. ठीक है, यू डिप इट इन आइस कोल्ड वाटर, नॉट फॉर गुरविंदर जी एंड पीपल फ्रॉम नॉर्थ. मैं पहले भी मैंने बोला था, जब तक ठंडी पूरी तरह से जाती नहीं है कोई इसको नहीं. हम लोग जैसे मुंबई वाले, चेन्नई वाले, वी डोंट एक्सपीरियंस कोल्ड, तो हम लोग कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो जैसे ये है पट्टी पूरा, इसको आपने डिप किया पानी में, ठंडा कोल्ड वाटर में, देन यू स्क्वीज इट, और अच्छे से आप इसको अपने से स्क्वीज कर लिया कॉटन क्लॉथ को. देन आफ्टर स्क्वीजिंग, देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि 3 लेयर में हमें लगाना. लेयर इन द सेंस, फर्स्ट आई विल शो यू कि हमारा जो फोरहेड है, लाइक दिस, फोरहेड पे यू पुट इट लाइक दिस, अच्छे से टाइटली आप है ना उसको करना. एंड यहाँ पे अब आई एम नॉट डूइंग इट नीटली, थोड़ा ये, दिस इज सिंथेटिक मटेरियल ना, तो कॉटन में अच्छे से फिट हो जाएगा. सो ऐसे करके आप यहाँ पे पिन लगा देना, सो दैट इट डज नॉट, गिरेगा नहीं वो. फिर ऐसे एकदम आप उसको पकड़ के रखना, यहाँ पे पिन लगा देना. सो कॉटन की पट्टी अच्छे से, दिस इज वन. द सेकेंड, दूसरी जो पट्टी रहेगी वो हमारे गले में जाएगा, लाइक दिस. अगेन यू विल, जो आप इसको अच्छी तरह से इसको आप घुमा के लाइक दिस, पूरा आपका गला कवर हो जाएगा. ठीक है, द सेकेंड पट्टी. नाउ द थर्ड वन, जो सबसे ज्यादा चौड़ा है, विच विल बी अराउंड 9 inches. आई विल शो यू, आपको शायद दिख जाए तो. सी दिस, ये जो है ना, यू कैन सी दिस इज माय स्टमक एरिया, राइट. हमारा जो स्टमक है, चेस्ट के नीचे से वी हैव टू जस्ट पुट इट लाइक दिस. ये अपने स्किन के ऊपर आएगा, नॉट ऑन द ड्रेस. अभी तो मैं दिखा रही हूँ स्किन के ऊपर, ऐसे वी हैव टू टाई. सो दीज आर द 3 एरियाज जहां पे वी विल टाई. सो व्हाट, इसको कम से कम 30 minutes वी विल कीप. सो आफ्टर ये पट्टी लगाने के बाद में ना, यू वेयर योर कुर्ता, टी शर्ट, जो भी आप पहन लेना स्टमक में लगा के, leave it up. You can do any work, your kitchen work, your whatever, but you can't do exercise and you can't eat. जब पट्टी रहेगा ना यहाँ तीनों जगह पे, तो हम खा नहीं सकते और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ये बहुत बड़ी सावधानी हमें रखनी है. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, why we have to go for the wet pack therapy? Because हमने जो 3 जगह पे जो पट्टी लगाया है, वहां का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी द टेम्परेचर इज वार्म. समझ रहे हैं? जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड का टेम्परेचर इन 3 जगह पे ठंडा रहेगा, बाकी की जगह पे वार्म रहेगा. सो कभी भी आप देखोगे एक जगह पे जब 2 टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, तब वहां से जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकलती है. सो राइट नाउ हमारे बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स को हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जूस पीकर, डाइट ठीक से लेकर के, एक्सरसाइज करके, लेकिन ब्लड में और बहुत कचरा जमा है और बहुत गंदगी है. उसको हम कैसे निकालेंगे? ये बेस्ट तरीका है. जैसे आपने बॉटल देखा होगा ना, ग्लास का बॉटल रखा है, उसको आप 2-3 दिन वैसे ही रखोगे, एक दिन आप उल्टा करो, उसको थोड़ा हिला के वापस सीधा करो, तो आपको नीचे पार्टिकल्स दिखते हैं उसकी गंदगी के, है ना.
So similarly, if we start doing this wet pack therapy every day, initially for 1 month you can do 2 times a day. लेकिन बाद में आप एक दिन में एक बार करना, आधे घंटे के लिए रखना, and then you remove it. This will be an amazing thing. आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका जो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, एवरीथिंग वो ठीक हो जाएगा. यहाँ पे जब हम बांधते हैं, माइग्रेन, हेडेक, जो भी पेन है, यहाँ से स्ट्रेस, सारी चीजें कम होने लगती है, राइट? So this is the second step. Third one, the third approach is, this is what I'm talking about, what this is Dr. Kalam's approach, जो उन्होंने, मैंने कहा ना, हार्ट पेशेंट्स पे जो किया था, ये रिसर्च 1990s में अभी भी चल रहा है, ये रिसर्च अभी भी लोग जाते हैं वहां पे अपना रिवर्स करने के लिए. So this is how the entire mechanism was done. So अभी हम third process क्या है? Third approach is meditation. It can be any form of meditation. कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वही करना है, या किसी ने बोला. This is totally up to you which one you want. Okay, so my meditation technique is something you have already done several times, the regular participants, जो हम psychoneurobics करते हैं. Psychoneurobics में हम क्या करते हैं? मुद्रा रखते हैं, साउंड करते हैं और कलर को देखते हैं. So for hypertension we will sit in ज्ञान मुद्रा, ठीक है, इस तरह से ज्ञान मुद्रा, एंड हम ग्रीन कलर विजुअलाइज करते हैं. एंड व्हेन वी विजुअलाइज द ग्रीन कलर, वी मेक अ साउंड दैट इज ई साउंड, लाइक दिस. सांसें भर के फिर ई, जब हम ई साउंड करते हैं ना, सो दैट वो हार्ट, गले से लेकर ये हार्ट तक वाइब्रेट होता है. यू विल फील दैट वाइब्रेशन. Okay, so this is a technique which will slowly, इसको आप 11 बार करना, 21 बार करना, आपको जैसे टाइम मिलता है, accordingly you do. So what we do is, again I'm repeating, we sit in ज्ञान मुद्रा, ठीक है. ग्रीन कलर की कोई एक चीज अगर आप विजुअलाइज ऐसे नहीं कर पा रहे, जैसे मुझे वैदेही जी का ब्लाउज अभी ग्रीन कलर दिख रहा है, सो अगर आपके पास ग्रीन कलर कुछ है, कपड़ा है, कोई पेपर है, कुछ भी है, सामने आप रखना, बिकॉज वी शुड गेट टू सी दैट ग्रीन कलर. उसके बाद हम ई साउंड करेंगे. कैसे ई साउंड करेंगे? वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ लाइक दिस, एंड देन ई. आप जब जोर से ई करो, ई मतलब शर्मा के नहीं करना, थोड़ा जोर से करना है. व्हेन वी डू इट लिटिल लाउडर ना, सो यहाँ वोकल कॉर्ड से शुरू होकर के आप हार्ट से लेकर के अपर एब्डोमेन तक आपको एक वाइब्रेशन मिलेगा. सो दैट हेल्प्स इन हीलिंग द हार्ट एंड दिस जो प्रॉब्लम जो चल रहा है ना हमारा डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, उसमें इट स्टार्ट्स हीलिंग. सो दिस इज द थर्ड अप्रोच विच वी कैन डू. सो अगर ये तीनों चीजें हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, अपने हाइपरटेंशन के लिए, बीपी के लिए, तो आप देखोगे, बट इट टेक्स टाइम. सम पीपल फील कि इतना सब मेहनत करने से तो अच्छा है कि 2 गोली खा लो, शांति से दिन निकल जाएगा. बट वी वांट टू बी मेडिसिन फ्री, राइट? अपने को दिखाना है ना कि भाई हमने कितना गेट सेट अप में प्रोग्राम्स अटेंड किया, तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना. सो देन ओनली यू विल गेट टू सी दैट रिजल्ट, राइट? सो रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन. वैसे तो करते हैं, जितने मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स, यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ज्योति जी प्लीज थम्स अप. फायर एलिमेंट, ग्रेट. या ओके, या गुड, फैंटास्टिक. हम तो वी कैन डू दिस. सो डूएबल, इजी था. एक और बार थम्स अप कर लो, इजी था तो. अब तो आदत सुन के आदत पड़ गई होगी. अब चाय पीने का मन भी नहीं करता होगा, स्मूदी ले लो मन करता होगा, चलो ये कर लो, है ना? अरे वाह, नवीन जी इज आल्सो देयर. ओके, ग्रेट ग्रेट. देखो सब लोग ने थम्स अप दिखाया. एक्सीलेंट, फैंटास्टिक. ओके, सो Agam, if there are any questions in the chat, let me know. First question is like, share the recipe of dalia with vegetables. Okay, very simple. जितने वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं अभी मार्केट में, गाजर, बीन्स, ये वो, पपीता, जो जो मिल रहा है, पत्ते से लेकर सब, बॉइलिंग वाटर में यू ऐड, और वो उसमें वैसे ही कढ़ाई में कुक होने देना. कुक होने के बाद में जो दलिया है, उसको ऑलरेडी जो कुक्ड आपने कुक करके रखा है, उस दलिया को इसमें आप ऐड करना. यू ऐड हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, एब्सोल्युटली 0 ऑयल.
लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा ना, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इसमें तेल ही नहीं है। अगर ठीक है, आपको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है वेट का, कुछ आपको बहुत ओबीस नहीं है आप, तो यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ घी टू इट। घी इज एनीवेज गुड, फैंटास्टिक होता है ये रेसिपी। सिमिलरली यू कैन मेक फॉर द अदर मिलेट्स ऑल्सो। मतलब ये तो दलिया था, बाकी अगर दूसरे मिलेट्स आप लेते ना, बाजरे की कुछ बना रहे हैं आप, ये करते, सब में आप सेम चीज आप यूज इसी तरह से यूज कर सकते हो। ओके, Can we look at the tree? Gurvinder ma'am is asking. हाँ, yes, green color ना, yes, you can have a look at the leaves, yeah. After having infused water, can we have the carrot and apple? नहीं, इन्फ्यूज्ड वाटर एक बार ले लोगे ना, तो उसकी थोड़ा गैप देना, इमीडिएटली एटलीस्ट हाफ एन आवर। Can we have haldi milk at 5 p.m.? Yes, you can have, yeah. Dalia, we have to rest. दलिया, We have to rest. REST. Like दलिया Deepika ma'am. रेस्ट, मतलब Roast. अच्छा, रोस्ट। रोस्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं, आई डोंट रोस्ट, आई तो जस्ट मेक इट लाइक दैट ओनली। मेरे ख्याल से रोस्ट करने से ज्यादा टेस्टी बनेगा, शॉर्टकट मारने के लिए आई डोंट रोस्ट। Yes, then Gurvinder ma'am, are you asking lunch, please? Like LUNCH. Like, could you unmute? गुरविंदर जी कहाँ पे? गुरविंदर जी, हाँ, क्या पूछ रहे हैं गुरविंदर जी आप? मैं पूछ रही थी लंच में, जैसे आप बताते हैं ना कि एक वो रहता है कि सैलेड होगा, सब्जी होगा, हाँ, रोटी होगा, है ना, हाँ। वेजिटेबल का रोटी होगा। एक मेरे को डाउट था कि जो सैलेड है वो हमने लंच के साथ ही खा लेना है कि उसको थोड़ा सा पहले खाना है, कि जैसे ये रोटी के साथ खा सकते हैं? आपने ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इतने डिटेल में कभी बोलती नहीं, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि लोग भाग जाएंगे करके। मेरे को बहुत दिन से था, जब भी मैं लंच खाती हूँ, मैं खीरा पहले खाऊं कि बाद में कि साथ खा लूं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली खाने का तरीका क्या होता है ना, लंच में जब हम सैलेड लेते हैं तो खाना खाने के थोड़े टाइम पहले सैलेड खा लेना चाहिए। मतलब आपने सैलेड खा लिया, 10-15 मिनट के बाद में खाना शुरू किया, क्योंकि सैलेड तो कच्चा है, फूड तो कुक्ड है, तो चांसेस होते हैं कि पेट में वो थोड़ा गड़बड़ी करता है, साथ में नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा इतना मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी तो मेरे को डर लगता है, बेचारे सब पे मैं ऐसे जुल्म ढा रही हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। नहीं। थैंक यू सो मच। मैंने कहा कुछ लंच का बताया नहीं, मैं पूछ लेती हूँ आज। मैं कई दिन से पूछना चाह रही थी, तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा साथ में आपने पूछा, मैं खुद नहीं बोलना चाहती थी, आपसे क्वेश्चन आया तो मैंने आंसर कर दिया। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, नवीन जी कहते हैं इट्स लाइक स्टार्टर्स। नवीन जी एकदम फर्स्ट क्लास वर्ड आपने दिया है, स्टार्टर्स। लोग कहाँ ये कबाब वो कबाब, हम तो ककड़ी खा रहे, खीरा है हमारा स्टार्टर, राइट? परफेक्ट, या Yes, Radha ma'am. वो राधा जी, हाँ जी, मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, थोड़ी तबीयत के कारण तो मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर रही हूँ, परंतु अभी मैं बेटर हूँ। और मैं पूछ रही थी ऐश गार्ड कितना क्वांटिटी में, कितना वेट होना चाहिए जिसका हम जूस निकालें? ऐश गार्ड जैसे है ना, अभी जैसे मैं तो पूरी फैमिली का निकलता, आप समझो इतना बड़ा जो पीस, मतलब इतना आप समझो एक पीस है, इतना बड़ा साइज, 200 ग्राम, आप मतलब वो है ना 5-6 पीस काफी हो जाता है एक जन के लिए। 200 ग्राम 200-150 ग्राम ठीक रहेगा फिर एक पर्सन के लिए। हाँ जी, तो उसमें पानी डाल के मिक्सी में उसको चला लेना और छान के निकालना है, छान के निकालना जी। ओके, ये मेरे को उसका क्वांटिटी ही नहीं मालूम चल रही थी। और जैसे आप बता रहे हैं, जैसे कि लंच में मैं ज्वारी की रोटी खाती हूँ, और या बाजरे की खाती हूँ, लंच मेरा यही होता है। तो और रात को क्या है कि रात को दूध पीते हैं 8:30 बजे, शाम को कुछ 6-7 बजे फ्रूट, एक एप्पल या कुछ ऐसे ले लेते हैं, और 8:30 बजे दूध ले लेते हैं। तो ये अच्छा सिस्टम है। हाँ, ठीक है, ओके, हाँ, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। परंतु उसके बाद भी, इतना बताने के बाद भी मेरे को क्या स्टमक इन्फेक्शन हो गया था।
अच्छा 8 दिन बहुत पेन रहा। आप ना वो 2 हफ्ते पहले ना गट के बारे में बताने जा रहे थे। हाँ हाँ, तो हाँ उन्हीं दिनों में मैं सुनना चाह हाँ, रही थी, उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम हो गया और मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। ओ, परंतु अब मैं ठीक हूँ। अब मैं आपको जो स्मूदी वगैरह हैं, वो सब मैं हाँ, ट्राई करूँगी घर जाने पे, ठीक होने पे। बढ़िया हाँ, बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप थैंक बहुत अच्छा बताते हैं, भवानी देवी। वो नानी ने रख दिया था दुर्गा का नाम, आपने दिव्य बना दिया। चलिए जी, थैंक थैंक यू। यू What? सो नाइस ऑफ यू जी। टेक केयर। थैंक यू थैंक यू। गोपा जी ना, Wait, from chat box, like, अच्छा what about curd? And then second question, what about intake of salt? देखो कर्ड इज परफेक्ट, यू कैन 200 टेक, ग्राम बट है। शॉप वाला कर्ड हाँ नहीं, जी। आपको घर में बनाया हुआ कर्ड। सेकंड, बटर मिल्क इज गुड, बेटर देन कर्ड, और ये हमें लेना है या तो ब्रेकफास्ट या लंच में, नॉट इन द डिनर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था? सॉल्ट। Intake of salt. सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट मतलब नंबर 1 इज वी विल स्टॉप द रेगुलर सॉल्ट। अगर नहीं भी बीपी की प्रॉब्लम है ना, तो मैं जैसे घर पे सॉल्ट वो लाती नहीं हूँ, वो अलग सॉल्ट, तो हमें वो सेंधा नमक ही यूज करना है। और उसमें भी है ना रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि सेंधा नमक यू विल नीड मोर, वो आपकी नॉर्मल सॉल्ट जैसा वो टेस्ट नहीं आएगा, तो हम ना एक्सेस डाल देते हैं। सो एक्चुअली एज पर द RDA, जिसको कहते हैं ना रेकमेंडेड डेली अलावेंस, जो इंडिया का है, उसके हिसाब से है ना, इट इज कितना mg मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 5 mg है क्या नवीन जी? 5 mg या उससे कम है शायद, लेकिन अगर उसको हम देखेंगे ना तो दैट कम्स टू एक्चुअली 1.5 टीस्पून कुछ आता है उसका हिसाब जब हम करते हैं तो। और हमारा जो है ना 5 to 6 टाइम्स ज्यादा हम लोग खाते हैं। हाँ, हर चीज में सॉल्ट होती है ना। और ये कहा जाता है कि इंडिया ऐसा वैसा, लेकिन आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में और ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारे फूड प्रोसेस्ड होते हैं। So that's why you'll find that in America you'll find that ये केसेस और ज्यादा आपको दिखेंगे, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन सबके इंडिया से भी ज्यादा। तो अभी अपने को एक चीज समझना है कि हम जो सॉल्ट लेंगे ना, अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो देन यू मेक श्योर कि आप फूड तो 4-5 लोगों का बनेगा ना घर में, 2 लोगों का, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना कि दिन में 2 चम्मच से ज्यादा सॉल्ट नहीं होनी चाहिए। सपोज आपने कुछ एक्स्ट्रा कोई दिन खाया तो वो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। सी बीपी पीपल ना, आई कांट से एनीथिंग, आई फील वेरी बैड अबाउट इट, बिकॉज मुझे बुरा लगता है, पर एक्चुअल में ध्यान देना पड़ता है। एंड स्ट्रेस, लाइक yesterday also I said, my husband is suffering from hypertension, diet, exercise, everything is perfect, but stress level is making that BP मतलब इतना ज्यादा लेके जाता है, तो वो स्ट्रेस को भी हमें कम करना है किसी भी तरह से, राइट? सो ये चीज। नवीन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट 2 minutes, we'll finish गोपा जी एंड Go. रवीना जी इन द लाइन। एंड या मैडम, आई वांटेड टू आस्क यू दैट वो जो पट्टी हम लोग करते हैं ना, तो तीनों एक साथ ही लगाना है या हाँ एक हाँ, लगाने का है? नहीं नहीं वो नहीं मुझे नहीं, जानना है। तीनों एक साथ, तीनों एक साथ। और वो पानी जो है वो पूरा स्क्वीज करके लगाना है ना? मतलब एकदम ऐसे वो निचोड़ना नहीं, पुराने जमाने में निचोड़ के वैसे तो कपड़ा फेंकते वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा रहे उसमें, तो कुछ अपने को ठंडा पहुंचे ना, इसलिए। ओके ओके, हाँ ठीक है। ओके, वीणा जी। हाँ जी, आधा क्वेश्चन तो उन्होंने मेरा पूरा कर दिया जो मैं पूछना चाह रही थी कि तीनों अच्छा, एक ही टाइम में लगाना है। और दूसरा ये है कि किसी भी टाइम लगा सकते हैं या मॉर्निंग में ही? नहीं नहीं, कोई भी टाइम लगा सकते हैं, पर इतना है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लगा सकते हैं, और बस। हाँ, दूसरा ये है कि ये चपाती का तो आपने जो बताया, अगर फिल करके बनाए तो? फिल करके बनाएंगे ना तो कैसा, मेन जो हमारा फायदा है ना, कि वो आटा, अभी जो आटा जो आता है ना, हाइब्रिड वैरायटी है व्हीट, तो इसके लिए ना हम जितना ज्यादा आटे से, ग्लूटेन आजकल बहुत चल रहा है ना, ग्लूटेन के से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम है, चिपकता है ना हाथों में जाकर वो, तो हम जब ये इसके साथ मिक्स करते हैं ना सब्जियों के साथ, तो क्वांटिटी आटे की कम हो जाती है। दिस इज अ मैं बेटर वैसे ऑप्शन। हाँ हाँ नहीं, मैं वैसे भी आटा जब भी गूंथती हूँ ना, तो जैसे 1 कटोरी ये लिया गेहूं का, और आधी आधी कटोरी ना वो लेती हूँ बाजू ये ज्वार और जौ का, तो मैं ऐसे करके गूंथती हूँ तो भी। नहीं, पर है ना, जब आप वेज चपाती बनाओगे ना,
तो आप क्योंकि बाकी के इसके साथ नहीं जाएगा वो वेजिटेबल्स, हम उसको बाइंड नहीं कर सकते, वो आटे के साथ ही बाइंड होता है अच्छे से। हाँ, तो वो खाली आप आटे के साथ बनाना, सब जौ की बनाना तो फिर वो अलग से आप कुछ बनाना, इसके साथ उसको कंबाइन मत करो, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स वी शुड नॉट बी एक्चुअली कंबाइनिंग, इसलिए। ठीक है, या ओके, नवीन जी के पास चलते हैं, चलिए। We have got 3 minutes. हाँ नवीन जी बोलिए। I have 2 observations about wet pack. जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी है, उसको देखते हुए ज्यादा पंखा नहीं होना चाहिए और ज्यादा एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए, इन नॉर्मल वार्म टेम्परेचर। एसी में तो बैठना नहीं है। अच्छा हो गया आपने बोल दिया उस पॉइंट को, क्योंकि मैंने बोला नहीं था। वो स्पेशलिस्ट हूँ तो इसलिए सोचा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, ठंडी जगह में अपना रूम हीटर ऑन कर लेंगे, उधर ह्यूमिडिटी होगी नहीं और ड्राई वेदर से और सत्यानाश। तो ह्यूमिडिटी और उसका ध्यान रखें। अच्छा, सेकंड पॉइंट मैडम, आपका जो ये जितना कहना है सॉल्ट का, थैंक्स ए लॉट, बट व्हाट अबाउट दिस रेडीमेड मसालास? आई वाज थिंकिंग साउथ नॉर्थ, मतलब ये एवरेस्ट का मसाला, ये मैंने देखा रेडी, एंड दे ऑलवेज कंटेन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम एंड एक्स्ट्रा दिस थिंग, एंड हम लोग ऑलरेडी डालते हैं और उसके ऊपर फिर और डालते हैं। सो दैट वन इज रिमाइंडर फॉर ऑल द ग्रेट पर्सनालिटीज के, संभाल के खाओ और मिक्स अप नहीं करो। जैसे जलजीरा है, चलो और 2 चम्मच डाल दो, नींबू डाल दो, बड़ा मजा है, स्वाद में आता है, बाद में पेट में गड़बड़ हो जाता है। Thank you. Correct. Yes, you're absolutely right. Thank you, Naveen ji, for sharing. Thank you. Leena ji. God. Hello, ma'am. Hello, Leena ji. Ma'am, I just wanted to ask you that this vet therapy we should do twice a week, or is it? No, every day. Every day, okay. Twice a day you can do. Okay, twice a day we can do. Yeah. And I made the smoothie today. It was very nice. You know. Which one you made? I made that this thing, apple, spinach, and coconut water. Achha. That was very nice. In fact, all are very good. So like this one was today. I made it. I posted it on the group also. Okay. मैं देखती हूँ, देखा नहीं अभी तक. It's very tasty. Thank you so much, Leena ji. Thank you. Sangeeta ji, and if there are any more questions, we'll quickly take and we'll wind up. Sangeeta ji, are you there? Yeah, ma'am, smoothie जैसे उन्होंने बोला कि apple, spinach, then coconut water. हाँ, yeah. मैम इसमें जैसे ओट्स डाल सकते हैं, रोल ओट्स वगैरह अगर, क्योंकि बहुत लाइट हो जाती है ब्रेकफास्ट में लेना हो तो। नहीं, स्मूदी है ना, लाइट नहीं होगी, क्योंकि आप उसको थिक लोगे ना, वो बहुत थिक होती है स्मूदी, बहुत पेट भर जाता है। अगर आदत पड़ गई ना एक बार, जूस एंड स्मूदी का डिफरेंस होता है ना, थिक बनेगा। आप चाहे तो एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा डालना, बट डोंट ऐड ओट्स टू इट। मैम एप्पल, पालक, देन नहीं, देखो स्मूदी है ना, एक्चुअली मैंने उस दिन बहुत सारे रेसिपीज शेयर किए थे, मतलब पूरी लिस्ट के साथ में, तो उसमें से उन्होंने एक बनाया था, इन दैट आई थिंक शी हैज एडेड एप्पल एंड पालक। सो आप ऐसे ना बहुत आपको रेसिपीज मिल जाएगी, थिक बनाना आप जो भी स्मूदी बनाओगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मैम, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा, ओके। ज्यादा काम छोड़ के मैं आपकी क्लास सुन रही हूँ, मुझे भी किसी ने आपका नंबर मतलब ये सेटअप करके दिया है। वेरी एक्सीलेंट मैम, सुपर क्लास। मैम आपका क्लास 11 to 12 होता है ना? नहीं, 12 to 1, 3 to 4। अच्छा, वेलकम संगीता जी। मतलब जो अभी बोला है, देन 3 to 4 सेम? नहीं, अलग टॉपिक है। ओके मैम, अभी आपका जैसे आपने हाई बीपी के बारे में बताया, मैम आप शुगर देन लो बीपी के बारे में भी आप डिस्कस करते हो? देन डायबिटीज का बहुत होता है डिस्कशन, या लो बीपी का कभी नहीं किया है अभी तक। ओके मैम, संगीता जी। रूपल जी, फिर हम लोग लास्ट। रूपल मैम। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। आप भी पहली बार आ रहे हैं क्या? फेस नहीं, मैं हमेशा आती हूँ, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछ रही हूँ आपको। अच्छा, शायद वीडियो भी आपका फिर ऑफ रहता है? हमेशा ऑफ रहता है। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि मेरा है ना खाने का रूटीन, दिन में मैं उठती जल्दी हूँ 7:15 बजे, लेकिन मेरा खाना बहुत लेट से शुरू होता है, तो मैं सब जूस लेट पीती हूँ, तो चलता है? ऐसे चलेगा? ऐश गॉड वगैरह सब मैं 11 बजे, 10:30, 11 बजे पीती हूँ मैं। नहीं, जैसे मतलब उसका रूल कैसा है ना
कि पेट खाली जब होता है तब हम जूस पीते हैं। हाँ, खाली होता है, मैं कुछ भी नहीं हाँ, लेती हूँ सुबह उठ के, फिर मुझे ठीक आदत है, नहीं कुछ लेने का, that's एम्प्टी okay, स्टमक लेती हूँ मैं, लेकिन लेट से है। सब चालू होता है मेरा। सबसे पहले आइस हाँ, बॉडी लेती हूँ, हाँ, लेकिन वो हाँ, चालू 11 बजे होता है, मतलब कुछ भी लेना पेट में डालना 11 बजे से स्टार्ट होता है। तो इज इट ओके? या क्योंकि मुझे फाइन, इतना जल्दी सुबह मतलब इच्छा नहीं होता है कुछ भी हाँ, खाने पीने का, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, वो चलता है, फिर उसके बाद जूस, फिर स्मूदी, और उसके बाद लंच लेती हूँ। और हाँ, लंच और उसके बाद 1 बजे लंच लेती हूँ, फिर 6:30 बजे सीधा मैं फ्रूट खाती हूँ हाँ, शाम हाँ, को, और okay, 8 बजे खाना खा लेती हूँ। तो वैसे okay, बराबर है रूटीन ऐसे। ठीक है, या परफेक्ट, या गुड गुड, या ओके, ओके, थैंक यू, चलिए, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू। I'll quickly share my screen, टाइम हो गया ना, okay, yeah. So we understood this was the summary, how the 3-dimensional approach to manage high BP. Diet के बारे में भी हमने समझा, and thank you for attending the class. And आज का जो 3 o'clock वाला टॉपिक है बायोरिदम क्लॉक, ये है क्या, we will understand at 3 PM. ठीक है? So thank you Agam, and thank you everyone for joining. चलिए, bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Ashirwad.